Hello students, welcome in accountancy class and I hope you are well and healthy at your home and you are taking care about your studies because you know the value of time and it is important time for you because you are the board class students. So in last video we studied the past adjustment, how we solve the past adjustment. So in this video I am solving some questions, some problems of past adjustments from DK Goyal book. Our question is 50th A. So read this statement carefully. On 1st April 2015, the capitals of A and B were rupees 4 lakh and rupees 2 lakh respectively. They divided profits in their capital ratio. वो अपना profit capital ratio में divide कर रहे हैं. Profit for the year ended 31st March 2016 were rupees 3 lakh. प्रॉफिट था 3 लाख रुपीज विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर नॉट पास थ्रू द बुक्स. लेकिन ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स है, ये बुक में पास नहीं की गई. नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ओमिशन हो गई है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए रुपीज 12,000 एंड बी रुपीज 10,000. थर्ड है कमीशन ड्यू टू रुपीज 20,000 ऑन ए स्पेशल ट्रांजेक्शन. कमीशन थी बी की स्पेशल ट्रांजैक्शन की, वो भी पे नहीं हुई. और ए इज टू बी पेड ए सैलरी ऑफ रुपीज 50,000 और ए को सैलरी पे करनी थी, वो भी पे नहीं की. विदाउट दिस कंसिडरेशन profit is divided. So you are required to pass a journal entry on 10th April 2016 which will not affect the profit and loss account of the firm and at the same time will rectify the error. इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि यू विल एडजस्ट द एंट्री, डोंट चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज देयर आर 4 mistakes, 4 errors. Number 1, interest on capital. Second is interest on drawing. And third is commission of B. And fourth is salary to A. So one by one we solve all this transaction. And first is interest on capital. उसी तरह से हम टेबल बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स, ए कॉलम, बी कॉलम एंड टोटल कॉलम. After that, first of all, we calculate interest on capital at the rate of 12% per annum. And you know that the interest on capital is given always credited. So in working note, first of all, A interest on capital, A की capital 4 lakh and rate of interest is 12%, so that it become 48,000. And B interest on capital, that is 2 lakh rupees and rate of interest is 12%, that means 24,000. So you write here 48,000, 24,000 and it become 72,000. Clear? नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रिवर्स होता है, वो डेबिट में जाता है. पहले हम क्रेडिट की आइटम्स को ले लेंगे तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा. सेकंड है कमीशन टू बी. हमने बी को कमीशन देनी है. कमीशन है बी की 20,000 रुपीज. सो वी राइट इन बी कॉलम 20,000 एंड टोटल कॉलम 20,000. ये भी क्रेडिट होती है. थर्ड है ट्रांजैक्शन सैलरी टू ए. ए की सैलरी भी हमने पे नहीं की थी, वो भी सैलरी भी क्रेडिट होती है. तो ए के कॉलम में 50,000 आ जाएगी. एंड देन वी राइट टोटल कॉलम. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू टोटल all these credit item. Here you write total credit amount 98,000,
44,000 and here total become 1,42,000. Now fourth error is interest on ड्रॉइंग्स. यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे को दे रखा है. ए का 12,000 रुपीज और बी का 10,000 रुपीज, तो टोटल बन गया 22,000. अब ये टोटल अमाउंट क्रेडिट की है, ये टोटल अमाउंट डेबिट की है, तो क्रेडिट में से हम डेबिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे. सो इट बिकम 86,000 and it become 34,000 and total become 1,20,000 credit. That means फर्म ने क्रेडिट जो है पे करना है. Now we divide this 1,20,000 in their capital ratio, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कैपिटल रेशियो है. So you distribute rupees 1,20,000 in capital ratio. Capital ratio is 4 lakh and 2, that means 4:2. Now we divide A share 1,20,000 multiply 4 by 6, that means 80,000. And B share is 1,20,000 multiplied 2 by 6, that means 40,000. Clear? This is डेबिट, क्योंकि ये फर्म को क्या होने वाला है, लॉस है, पार्टनर को इनकम मिलने वाली है. सो वी राइट हियर डेबिट 80,000 and 40,000, it become डेबिट. क्रेडिट और डेबिट सेम अमाउंट से, इसका बैलेंस क्या बन गया बेटा, नील. ये क्या अमाउंट थी, क्रेडिट. जो हमने इसका बैलेंस कैलकुलेट किया है वो क्या किस में आएगा, क्रेडिट में. और जो हमने ये डिवाइड किया है लॉस कैपिटल रेशियो में, ये कहाँ जाएगा, डेबिट में. नाउ यू सब्ट्रैक्ट 86,000 क्रेडिट है और 80,000 डेबिट है, तो दैट मीन्स क्या होगा, 6,000 क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट एक्सेस है. इसी तरह से 34,000 क्रेडिट है और 40,000 डेबिट है, तो डेबिट एक्सेस है, तो दैट मीन्स 6,000 डेबिट. एंड नाउ यू गिव द rectification journal entry on the date of 10th April. Date is 10th April 2016. Here B capital account debit 6,000 rupees to A capital account. And give the narration of the entry, rectification of error. I hope you understand this question. Pause karna. Now, question number 51A. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. Their fixed capitals were rupees 4 lakh and 2,50,000 and 1 lakh rupees respectively. Net profit for the year ending 31st March 2017 amounting to rupees 2,20,000 which was distributed, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है without providing for the following. ये हमने प्रोवाइड करना भूल गए. फर्स्ट है सैलरी टू बी ₹5,000 पर मंथ एंड टू सी ₹10,000 पर क्वार्टर. बी की सैलरी भी रहती है और सी की भी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड कमीशन टू मैनेजर एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. यहाँ पर ये जो मैनेजर है ये ABC पार्टनर मैनेजर नहीं है, कोई थर्ड पार्टनर जो है पार्टी जो है वो मैनेजर है.
तो हाउ कैन यू एडजस्ट दिस रेक्टिफिकेशन? पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री. So same procedure we follow. First of all, we make the table showing the adjustment particulars, 3 partners and 4 columns, and we start first error, interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना है? क्रेडिट करेंगे. कैपिटल है यहां पर ए की 4 लाख रुपीज and rate of interest is 6%. That means 24,000. B की कैपिटल है 2,50,000. Rate of interest 6%. That means 15,000. And C capital 1 lakh. Rate of interest 6%. That means 6,000. So you write the 24,000 in A column, B column 15,000 and C column 6,000. Total become 45,000 credit. Clear? After that salary है. Second adjustment, salary to B. Salary जो थी B की वो पर मंथ थी 5,000. सो बी की सैलरी हो जाएगी 5,000 मल्टीप्लाई 12. दैट मीन्स 60,000. और सी की सैलरी है, सी को सैलरी मिली है 10,000 पर क्वार्टर. दैट मीन्स 10,000 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 40,000. देन टोटल बिकम 1 लाख. वो भी क्रेडिट है. अब जो तीसरी एडजस्टमेंट है वो पार्टनर मैनेजर की है. तो उसको एडजस्टमेंट करने से पहले हम इनको सॉल्व करेंगे. टोटल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का टोटल कर लेंगे हम. ए बिकम 24, बी बिकम 75,000 and C become 46,000 and total become 1,45,000 credit. Clear? Now we divide this 1,45,000 in profit sharing ratio. Distribute 1,45,000 in 2:1 because their profit sharing ratio is given 2:1. A share 1,45,000 multiplied 2 by में 5. That means ये कौन सी उसमें जाएगा? डेबिट साइड. क्योंकि फर्म के लिए क्या बनने वाला है? ये लॉस बनने वाला है. और लॉस हम क्या करेंगे? पार्टनर्स की कैपिटल और करंट में डेबिट करेंगे. सो ए शेयर 58,000, बी शेयर 58,000 एंड सी शेयर 29,000. इट बिकम 1,45,000 डेबिट. सो इट्स बैलेंस इज nil. नाउ वी कंपेयर द कैपिटल. इट बिकम 34,000 debit, 34,000 debit and it become 17,000 credit and it become 17,000 credit. Now लास्ट एडजस्टमेंट मैनेजर कमीशन. अभी मैनेजर की कमीशन आउटस्टैंडिंग है, वो भी हम पार्टनर की कैपिटल से ही वापस ले लेंगे क्योंकि वो पार्टनर ने ही पे करनी है. सो यू गिव द
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजर कमीशन। 20,000 को हम कौन सी रेशियो में डिवाइड कर देंगे, इनटू रेशियो 2:1, और वो भी पार्टनर की कैपिटल से लॉस आई है फर्म को, ये भी पार्टनर वापस करेंगे। तो 2:1 को डिवीजन जब हम करेंगे तो ए शेयर बिकम 20,000 मल्टीप्लाई में 2/5, दैट मीन्स 8,000। ए बिकम 8,000 डेबिट, बी बिकम 8,000 डेबिट एंड सी बिकम 4,000 डेबिट। ये 20,000 अभी भी जो है वो डेबिट रहते हैं। क्लियर? नाउ यू कंपेयर टोटल दिस एडजस्टमेंट। Here 34,000 debit and 8,000 debit, that means it become total debit balance 42,000. And now you observe the B, 17,000 credit and 8,000 debit, so that balance is 9,000 credit. And here 17,000 credit and 4,000 debit, that means 13,000 credit. Here या नील है यहाँ पर बैलेंस, और अभी हमने 20,000 क्या किया है, मैनेजर की कमीशन को डेबिट कर किया है। क्लियर? तो अब हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री देखो ध्यान से पास करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मैनेजर कमीशन वाला चेंज है। कई बार इसमें इसकी जगह मैनेजर कमीशन की जगह जर्नल रिजर्व या कुछ और ऐसा जो है दे दी जाती है, तो आपको वो भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो नाउ जर्नल एंट्री बिकम ए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो हेयर यू राइट ए करंट अकाउंट डेबिट 42,000 टू बी करंट अकाउंट, क्योंकि यहां पर कैपिटल क्या थी, फिक्स थी, इसलिए हम कैपिटल में ट्रांसफर ना करके करंट अकाउंट में करेंगे, टू बी करंट अकाउंट, टू सी करंट अकाउंट, और यहां पर क्या है, टू मैनेजर आउटस्टैंडिंग अकाउंट, दैट इज 20,000। टोटल बन गया 42,000। नाउ यू गिव द नरेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। Yes, I hope you understand this question. Have you any doubt in this question? Then you can ask from me personally. So, clear?